So we were learning the statements. So I would like to ask you something. What is a statement? Because we are learning so many things and we have not been through any kind of test or any kind of mock. So now I will start the session and ask the previous days or the previous topic whichever covered few questions from them. Okay. So now I would like to know from you what is a statement? The line of code of execution. Line of code in executions. So how many statement in a Con- programming? Conditional control statement and unconditional. Anything else apart Push. from conditional control statement or unconditional control statement? Is there any other kind of a statement is also there? सिंपल स्टेटमेंट होता है. Loop. लूप कंट्रोल हाँ, लूप कंट्रोल. तो जो कुछ भी सेशन में होता है बीइंग ए स्टूडेंट आपको रिपीट करनी चाहिए. एक रिकमेंडेशन है कि सेशन में बताई गई चीजों को आप रिकॉल जरूर किया करें. ठीक है. So yesterday we have been through the statement and we have been through conditional control statement. What is conditional control statement? The statement which pass flow of control from one place to another place on given condition, from one section of program to another section of program on given condition. So this is known as conditional control statement. In conditional control statement we have if else and the combination of if else like nested if and else if ladder. So हमने ये सारे एग्जांपल्स कल देखे थे. Today we will start from unconditional control statement. Sorry, from conditional control statement one section, the switch case. Yes. So today we will continue with the switch case statement. Switch case is also conditional statement. So I start sharing the session and so continue. Today is a switch statement. Just a minute. Switch statement. What is switch? ये भाई हाइड हो यार. It is a conditional control statement in which a programmer can put multiple condition statement in one condition. कंडीशन चेक. ठीक. एक कंडीशन चेक पे हम मल्टीपल
कंडीशनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं। इफ में क्या होता था, इफ या एल्स में, कि इफ के साथ हम सिंगल एक ही सेक्शन में एक ही काम लिख सकते थे। अगर इफ में वो काम हो पा रहा था तो ठीक है, नहीं तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करता था। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दो कंडीशन में वो प्रोग्राम इफ एल्स काम कर रहा था, या तो इफ वाला सेक्शन या तो एल्स वाला सेक्शन। हम चाहते हैं कि हम एक कंडीशन चेक करें और उस कंडीशन में जो भी हमारी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग हम 4 5 6 कंडीशन कोड लिखें, और वो एक कंडीशन चेक पे उनमें से कोई एक लाई करे और वो सेक्शन रन कर जाए। अगर उन कंडीशन रेंज में कोई लाई नहीं कर रहा है, कोई उसमें उसको वो फिट नहीं बैठ रहा है, तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट करे। तो इसके लिए हम स्विच केस स्टेटमेंट यूज करते हैं। विद द हेल्प ऑफ if and else statement, we have only two block of code. One block of if block, whether the condition is true, then if block will execute. Else, the second block, the else part block will execute. So with the help of if else, we have only evaluate two different section of a statement. First, either true or false. But with the help of switch case statement, we can manipulate n number of multiple condition with one condition check. Like if we are putting n equals to 1 or n equals to 2, n equals to 3, whatsoever, perform this task. So with the switch case, we are writing the cases with one switch. Switch is nothing but it could be a condition check, it could be assigned the value, and that assigned value on the behalf of that condition, it will redirect to the particular section, and section could be multiple as per our program requirement. समझ में आई बात कि हम क्यों कर रहे हैं ये? Yes, sir. सो सिंटैक्स क्या होता है? स्विच, यहाँ पे कंडीशन आती है, कंडीशन इसके अगेंस्ट में केसेस बनते हैं। केस 1 और केस 1 बनेंगे, उसके लाइन ऑफ कोड होंगे, सॉरी, ठीक है। ऐसे ही हम कुछ बना सकते हैं केस 2, सॉरी, देन इसके लाइन ऑफ कोड हो सकते हैं, then we can also write case 3, then इसके line of code. Whatever our requirement, we have to write n number of cases. We are free to write n number of cases as per our program requirement. By the end of this, we must have to define a section which is known as default. What? Default. If the condition should with these cases, it will execute one of these. It will execute one of these. If condition do not lie between these three, then default statement will get executed. Understand? So we must put a default statement with the switch case. Is it clear? Yes, sir.
स्विच केस में क्या होता है, अभी आपको हमने बताया है कि कुछ ब्लॉक एग्जीक्यूशन में आएगा, एक कंडीशन रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, एक कंडीशन रहेगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू रहेगा, इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग वो किसी भी केस में जा सकता है, ठीक है। वो केस 1 हो सकता है, ठीक है, वो केस 1 हो सकता है। चलो थोड़ा एडजस्ट कर लेना है। इट कुड बी केस 2, it could be case 3, it could be any default. इस तरीके से ये हमारा स्विच केस काम करता है। जब हम स्विच केस बनाते हैं तो यहाँ एक नोट लिख दूं मैं, स्विच केस इन स्विच केस स्टेटमेंट, इन स्विच केस स्टेटमेंट we can put integer case like case 1, ऐसा करके 1 2 3, और we can put a character case like case equals to case, ऐसा लिख सकते हैं अपन a, हाँ, केस बी, ऐसा, ठीक है। और we can put a string case like कुछ भी, but we cannot put it in combination, इसको कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते, लाइक कि केस
1A, हाँ, केस 1B, ऐसा नहीं रख सकते हैं। क्लियर है कि हम लोग जब केस बनाएंगे तो केस 1 2 3 लिख सकते हैं, या केस A B C लिख सकते हैं, या इस तरीके से लिख सकते हैं। हम लोग कॉम्बिनेशन में केस नहीं बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रही है बात? हेलो, हेलो। यस सर। Sir. ओ मैथिली, आफ्टर 1 डे किधर था मैथिली? सर तबीयत खराब थी ओ, थोड़ी। अभी ठीक है? हाँ यस यस सर। गुड। तो अभी हम लोग स्विच केस के बारे में ये सारे देखा। ठीक है, तो अपन इन तीनों केस का एग्जांपल चलते हैं। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको कई एक बार स्विच केस का स्टेटमेंट का आपको यूज करना पड़ेगा ड्यूरिंग योर प्रोग्रामिंग कैरियर। वन ऑफ द मोस्ट यूज स्टेटमेंट में से एक है। आपको अपनी कई एक प्रोजेक्ट वगैरह में कई एक बार मैनिपुलेशन करने के लिए आपको इफ एल्स के साथ स्विच केस भी यूज करना पड़ेगा, खास करके लूप के साथ, वाइल डू वाइल के साथ अपन यूज करते हैं कि रिपीट तब तक करो वाइल नॉट इक्वल टू बाय, फिर कुछ स्विच केस से स्टेटमेंट चूज करते हैं ये परफॉर्म करो। तो ऐसे सिनेरियो बेस्ड यूजेस के होते हैं। तो अपन चलते हैं एग्जांपल पर, वीएस कोड ओपन कर लेते हैं। switch1.c, has include stdoh void main, then we have some variables what we will make a calculator, okay, using switch case, simple calculator. So we will take two input A and B, then for condition we will take number, and then what I have to take, like sum, multiplication, subtraction and division. That's all. We can declare in multiple variable with a single line using comma separator. So in this statement I used A, B, N, S, M, S, U and D. These 7 variable which is type of integer. So if your variable, all the variable have same type, you can use like this. You can declare in a single statement. Okay. Printf what? Enter two numbers. Okay. और असाइन कर लेंगे अपन किसको, ए एंड बी को। ठीक है, %d, 2 टाइम %d बिकॉज, सॉरी, %d address of A and address of B. So the first value will get a stored at the address of A, and second value will get a stored on address of B. To whom I am saying address of, it is known as %. So this is %A, this is %B. Okay.
So now again I printf, and I will show some messages like what enter 1 for sum, then we will use new line 2 for multiply, again slash n new line 3 for subtraction new line 4 for division. Enter your choice. New line enter your choice. ठीक है, स्कैन क्या कर लेंगे उस एन को जो हमने चॉइस के लिए यूज किया था। अब बनाते हैं स्विच केस। ठीक है, चूंकि अपन आईडी में है, फटाफट से देखो कितना आसान कर देता है। हमने स्विच लिखा, पूरे उसने लिख दिया एन। ठीक है, अब केस लिख रहा है। और हाँ सॉरी, जब अपन से एक्सप्लेन कर रहे थे एक बात छूट गई थी। ईच स्टेटमेंट विल गेट ब्रेक। अगर ब्रेक नहीं यूज करेंगे तो गड़बड़ है। सो केस क्या बनाए 1, केस क्या बनाए 1, और 1 में क्या लिखे एस इक्वल्स टू ए प्लस बी, और प्रिंट कर दिए इसको सम इक्वल्स टू परसेंट डी। किसको प्रिंट करना है एस को। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? सॉरी, प्रॉब्लम क्या है कि अपन ने पहले केस 1, ठीक है, ये ऐसे ही अपन और भी केसेस बना लेंगे। ठीक है, केस 2 क्या है, केस 2 के लिए हम लिखेंगे m इक्वल्स टू a इंटू बी, और प्रिंट कर देंगे मल्टीपल इक्वल्स टू परसेंट डी कुछ भी, और इसको अपन प्रिंट कर देंगे किसको m को। और काम हो जाने के बाद क्या होगा, स्टेटमेंट ब्रेक होगा। ठीक है, ऐसे ही केस 3 एस यू इक्वल्स टू ए माइनस बी, प्रिंट कर देंगे। ठीक है, एस यू then we will use break, again case 4 d equals to a by b, printf
division plus 2% D slash D, this break, और अगर इनमें से कुछ ना रहे तो डिफॉल्ट, और यहाँ क्या करे, printf you have entered a wrong input choice. Please provide valid input. ठीक है, तो इस तरीके से अपन स्विच केस लिखते हैं। और ये प्रोग्राम कर क्या रहा है, प्रोग्राम टू डिस्प्ले अर्थ, ठीक, ऑपरेशन यूजिंग स्विच केस, ठीक है। जीसीसी sw1.c कंपाइल हो गया, .stk.exe इंटर 2 डिजिट्स, मैंने कहा 20, सॉरी 10 5, फिर आता है इंटर 1 फॉर सम, 2 फॉर मल्टीप्लिकेशन, ऐसा करके। तो अपन ने कहा जी 2 करो, इंटर योर चॉइस, आई इंटर 2, सो आगे का काम क्यों नहीं हुआ, इंटर, स्कैनफ में एड्रेस ऑफ n चाहिए। सॉरी 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 सॉरी, हाँ देखो अपन ने सिर्फ इन लिखा है, गुड 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 गुड। जब टाइपिंग मिस कर रहा होगा तो उस समय बता दो बच्चे, हाँ आगे बढ़ गया अपन ने, ठीक है। अपन ने लिया था 2 इनपुट, चलो 19 और 2 लिया, अपन ने कहा 2 मल्टीप्लिकेशन करो जी, करके दे दिया, ठीक है। और थोड़ा सा अपन इधर कर सकते हैं, इंटर योर चॉइस को थोड़ा सा अपन, हाँ अच्छा लगेगा, तो अपन ने लिया 20 + 10, हमने कहा 4 करो जी, दिखाया, ठीक है। तो इस तरीके से अपन स्विच केस का यूज करते हैं, क्लियर है। इधर हमने सारे ही ऑपरेशन कर लिया जो अपन ने अर्थमेटिकल ऑपरेटर का ऑपरेशन किए थे एक ही में, और यूजिंग गिवन कंडीशन कि हम जो भी n इनपुट करते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो सेक्शन एग्जीक्यूट करता है, रेस्ट ऑफ एग्जीक्यूट नहीं करता है। अच्छा, अपन बोल रहे थे क्या कि अपन ब्रेक नहीं लगाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ब्रेक नहीं लगाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एग्जीक्यूट, और अपन 2 डिजिट इंटर करते हैं, 10 और 2, और कहते हैं ऐसा है, क्या करो, 1 करो, देखो ना क्या हुआ, हमने चॉइस 1 किया था, वो 1 भी लिया, 2 भी लिया, 3 भी लिया, 4 भी लिया, हाँ डिफॉल्ट में भी आया,
ऐसा क्यों हुआ? ब्रेक क्यों? स्टेटमेंट। क्योंकि अपन ने ब्रेक यूज नहीं किया। तो समझ में आया ब्रेक स्टेटमेंट का यूज क्या है? कि ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर है कि किसी भी लूप का या किसी भी कोड ऑफ ब्लॉक को उस कंडीशन के बाद ब्रेक करना है तो अपन क्या यूज करते हैं? ब्रेक स्टेटमेंट। अगर हम स्विच केस में ब्रेक यूज नहीं करेंगे तो जिस कंडीशन से देंगे, फिर से देखो रन करता हूं, फिर से देखिएगा, अपन फिर से 2 डिजिट इंटर करते हैं, इंटर 2 डिजिट 10 और 5। ठीक है, इस बार अपन क्या करते हैं? 3 से करते हैं। ठीक है, तो देखो 3 से जब किए तो ऊपर का 2 एग्जीक्यूशन नहीं आया, लेकिन थर्ड कंडीशन से सेटिस्फाई हुआ। वो थर्ड भी दिया, 4 भी दिया और डिफॉल्ट भी दिया, क्योंकि उसके बाद वो सारी लाइन ऑफ कोड पढ़ लिया जब तक कि उसको ब्रेक नहीं मिला। तो ब्रेक का अपना एक बहुत ही रोल है। समझ में आया? क्लियर हुआ? यस सर। ब्रेक स्टेटमेंट हम यूज करते हैं उस केस को टर्मिनेट करने के लिए। तो हम फिर से सबको रिवोक कर देते हैं। तो रिवोक कर देते हैं, तो ले आते हैं वापस। ठीक है, और अब अगर अपन रन करते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है सभी को? यस। गुड। दूसरा एग्जांपल देखने की जरूरत है। दूसरे एग्जांपल की जरूरत है। लीजिए सर एक और। चलिए ठीक है, गुड। इस बार अपन क्या लेते हैं? अल्फाबेट वाला लेते हैं और अपन बिक्स डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, विच, हाँ कोई बात नहीं, प्रोग्राम टू यूज ऑफ स्विच केस कमेंट डिस्प्ले विक्स डे। ठीक है, चलो। हम्म, क्या चॉइस? प्रिंट एफ इंटर एम फॉर मंडे। ठीक है, स्लैश एन टी फॉर ट्यूसडे
slash N W for Wednesday H और Thursday slash N एक एक अलग स्टेटमेंट लिख लेते हैं, आगे लंबा हो जाता है, मजा नहीं आता। F for Friday slash N AS for Saturday slash N U for Sunday। और लिखते हैं इंटर योर चॉइस। ठीक है, स्कैन कर लेते हैं कैसा है। कैरेक्टर टाइप का क्या लिखाएगा? सी, क्या नाम? CH। ठीक है, अब बनाते हैं केस। किसको डालेंगे? CH को। अच्छा, फिर वही गलती, एड्रेस ऑफ CH। ठीक है, अब अपन बना रहे हैं कैसा? M। और देखो, अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि एक साथ दो केस भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपन दो केस एक साथ ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा हो तो क्या करो? प्रिंट एफ क्या? मंडे। ठीक है, और ब्रेक कर जाओ। देन वी हैव टी और दिस टी। तो क्या लिखो? ट्यूसडे। ठीक है, देन वी हैव डब्ल्यू और डब्ल्यू वेंसडे। देन वी हैव, एक जगह हम टी यूज कर लिए हैं तो सेकंड कैरेक्टर पे चले जाएंगे, एच पे। TH होता है ना, तो इधर लिखेंगे थर्सडे। F और दिस F। फ्राइडे देन वी हैव दिस संडे, S, and this is Saturday। Then we have U
और यू और ये संडे। ठीक है, डिफॉल्ट क्या कर दो, रॉन्ग इनपुट। ठीक है, डन है। क्लियर है, मैंने कहा एम प्रेस हुआ मंडे, रीरन करते हैं। अगर कैप से हम देते हैं तो भी मंडे, रीरन करते हैं। टी ट्यूसडे, एच थर्सडे, सो ऑन। तो आप इस तरीके से स्विच केस का यूज कर सकते हैं। हमने दो बनाया है, आप इवन स्ट्रिंग टाइप का भी बना सकते हैं। तो ये तीन तरीके से अब हमारा स्विच केस बनता है। हमने अभी आपको दो बताया है। ठीक है, ने- यहाँ तक कोई डाउट? अदरवाइज अपन नेक्स्ट में चलेंगे अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। Yes, sir. अगर किसी का अपन वन मोर टाइम इंटर करते हैं और कुछ भी ऐसा इंटर करते हैं तो क्या बोलेगा, रॉन्ग इनपुट। तो हमने देखा स्विच केस। अब अपन पास अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। एंड अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट ट्रांसफर फ्लो ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन विदाउट एनी स्पेसिफिक कंडीशन। It will use go to with level। ठीक है, ये दो तरीके का स्टेटमेंट होता है, गो टू और दूसरा होता है लेवल। ठीक है,
तो अपन देखते हैं, ये एक ही एग्जांपल में दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे। ओके, सॉरी, इंटरप्शन था। सो एक अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है? जो कि कंट्रोल ऑफ अ स्टेटमेंट ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी स्पेसिफिक कंडीशन का। लाइक ये बोलेगा गो टू दिस लेवल, उस लेवल पे आप रीडायरेक्ट कर देगा, या गो टू लाइन नंबर 10 15 ऐसा। तो ये गो टू स्टेटमेंट क्या होता है? अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट होता है। वो कोई कंडीशन नहीं चेक करता है, सिर्फ वो बोलता है गो टू लाइन नंबर 10, इस तरह से 10, वो 10 नंबर पे चला जाता है, गो टू दिस लेवल। और अब यहाँ कहानी आता है कि गो टू, तो जैसे कि स्टेटमेंट हो गया, इट इज अ सॉरी इट इज अ स्टेटमेंट विच रीडायरेक्ट द कंट्रोल। कि जैसे बोलेगा ना कि गो टू, लाइक गो टू, और बोल दिया 15, तो ये क्या करेगा? सॉरी, ऐसे लिखता हूँ। तो ये क्या करेगा? इट विल रीडायरेक्ट द प्रोग्राम टू लाइन नंबर 15। ठीक है, बट इसी का दूसरे लेवल के साथ होता है यूज। लेवल इज लाइक अ फ्लैग और एलियास गिवन टू द ब्लॉक ऑफ कोड। एक ब्लॉक ऑफ कोड को एक नाम देते हैं, एक फ्लैग देते हैं, उसको हम बोलते हैं लेवल। कि जैसे चार, देर आर 3 और 4 लाइन ऑफ कोड, एंड अपन ने लिख दिया कि लेवल कुछ भी, लाइक क्या बोले, एज या कुछ भी, ऐसा कोई कंडीशन, कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, कि उस पर रिपीट करो। तो इस तरीके के इस कॉम्बिनेशन में चलता है गो टू और लेवल। ठीक है, सिंटैक्स क्या होगा? सिर्फ लिखते हैं गो टू, और लेवल के लिए लेवल। समटाइम लेवल लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं गो टू का एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं समझ में वाली बात है तो पूछ लीजिए, ऐसा नहीं कि अपन आगे बढ़ते रहेंगे झूठ मूठ का। क्लियर है यहाँ? Sir. ओके, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट।
तो गो टू में यहाँ समझाने के लिए कुछ नहीं है लेवल में, अपन सीधे चलते हैं प्रोग्राम के थ्रू ही समझ लेते हैं। ठीक है, GT1.C। ठीक है, हैश इंक्लूड std io.h void main अपन ने लिया एक वेरिएबल एज के नाम से। ठीक है, printf enter your age स्कैन कर लेते हैं इसको, %d %age। अब लगाते हैं कंडीशन, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, जो कि हमने कल भी एक प्रोग्राम ऐसा किया था इफ स्टेटमेंट में। अपन लिखते हैं, अच्छा ये ऑप्शनल होता है, जब हम सिंगल लाइन लिखते हैं तो हम इसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। गो टू वोट, ठीक है, ब्रैकेट ऑप्शनल होता है, करली ब्रेसेस, जब हम सिंगल लाइन लिखते हैं तो। अब देखो वोट को इसने कर दिया रेड, ठीक है, इल्स प्रिंटफ, अब इसको रेड क्यों किया है वो आपको बताते हैं। यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, अब इधर बना देते हैं अपन, यहां कर देते हैं प्रिंट और इधर ही लिख देते हैं यू आर एलिजिबल टू वोट। देखो अभी गो टू वाला जो रेड हो रहा था खत्म हो गया, इसको बोलते हैं लेवल। ये क्या है, लेवल है। इस पर्टिकुलर लाइन को, ये जो अपन लाइन लिख रहे थे, इसको इस नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा, इस बोर्ड के नाम से जाना जाएगा। इस कोड और इस लाइन ऑफ कोड के लिए ये क्या है, एक लेवल है। तो यहां अपन ने गो टू का यूज किया कि गो टू वोट, कि जहां अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो इस प्रोग्राम का कंट्रोल गो टू लेवल के पास जाए। देखिए हम गो टू पे लेके आते हैं, देखिए क्या बोलता है, गो टू क्या है, लेवल है। बोला ना कि गो टू क्या है, एक लेवल है, आपको उस लेवल पे रिडायरेक्ट कर देगा। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो एल्स पार्ट वाले पे ले जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से गो टू और लेवल का यूज होता है। गो टू उस लेवल के पास जा, सीधे उसे वहां रिडायरेक्ट कर देगा। कंडीशन तो यहां चेक हुआ, अगर ये नहीं भी होता और हम कहते गो टू दिस लेवल, वहां लेके चला जाता। ठीक है, इसलिए ये एक अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट है। जहां लिखेंगे गो टू ये, वहां चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं, चलो पहले इस प्रोग्राम को अपन सेव कर लिए हैं, कर लेते कंट्रोल एस, पहले रन करते हैं। ठीक है, जीसीसी GT1.C रन करते हैं, बोला 18, तो रीडायरेक्ट क्या किया, किधर, इस तरफ। पहले ये कंडीशन ट्रू हुआ, इसके अंदर गया, यहां से रीडायरेक्ट कहां हो गया, इधर, और इसके अगेंस्ट में जो लाइन है वो प्रिंट कर गया। ठीक है,
अच्छा, मैं कह रहा था कि ये ऑप्शनल होता है, जब हम सिंगल लाइन में देते हैं तो ये ऑप्शनल है, हम नहीं भी दे सकते हैं। नहीं दिए, कोई इशू नहीं, ऐसे भी अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है। जब हमारा, कल ये बात जब हम कर रहे थे इस तो हम बताए थे, सॉरी, कुछ भी आप डालो तो बताओ, अपन ने गलत कोड को क्यों कंपाइल कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। अपन ने कल बताया था कि अगर सिंगल लाइन है तो उसकी जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, हम ये दे भी सकते हैं और ये नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन जब मल्टीपल लाइन ऑफ ब्लॉक रहेगा यहाँ पे तो इसको देना मैंडेटरी होता है, इस कर्ली ब्रेसेस का ओपनिंग ऑफ इफ का। ठीक है। क्लियर है? जब सिर्फ एल्स के बाद ही लेकिन लेवल, हाँ, बोलिए बोलिए क्वेश्चन। हाँ, ये लेवल जो लगा है वो इफ एल्स के बाद ही लिखना है। क्या ये गो टू? जिससे नहीं, ये नीचे बोर्ड जो लगा। हाँ, ये आप इफिल्स के बाद, इफिल्स के पहले कहीं पे भी डाल लो, कोई जरूरत नहीं है कि हम इफिल्स के बाद ही डालें। पहले भी डालेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। क्या हुआ है? हालांकि हम लेवल कहीं भी बना सकते हैं, ये रन क्यों नहीं हुआ? हम्म उसको बात करो। अच्छा, अभी आया था इंटरव्यू, ये स्लो क्यों हो गया था? ठीक है, तो ऊपर भी चल रहा है, कहीं पर भी इसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि हम इफ के बाद ही लिखें। ये ये बता रहा है कि वो ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको हम एक नाम दे दिए हैं। ठीक है, तो इसका कोई इशू नहीं है। क्लियर है? हाँ, इसके लिए प्रोग्राम टू evaluate switch case, go to sorry। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? या थोड़ा एक एग्जांपल और लें, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। जब तक लगे क्लियर नहीं, जब तक हम एक दो एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है। चलिए।
ले लेते हैं इंट आई इक्वल्स टू 1, काउंट नाम का एक लेबल बना लेते हैं, और काउंट में क्या लिखते हैं, प्रिंटफ, उस आई को प्रिंट कर लेते हैं, %d आई, न्यू लाइन में दे देते हैं। चलो ठीक है, ये काउंट नाम का लेबल बन गया। और क्या कर रहे हैं, इस आई को काउंटर भी बढ़ा रहे हैं। तो देखो ये जो लेबल बनाना जिसका नाम काउंट है, अब इसमें एक लाइन, दो लाइन, ये दो लाइन कोड इसके साथ चलेगा, इस लेवल के साथ। ठीक है, तो हम पिछले बार में एक ही लाइन था, इस कोड के अंदर इस लेवल के साथ एक ही कोड था, लेकिन इस लेवल जिसका नाम काउंट है, इसके साथ देखो हमने दो स्टेटमेंट। तो हमने डेफिनेशन में बोला था कि जो हमारा लेवल होता है वो ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जिसको हम एक नाम इलियास देते हैं। है तो ये लाइन प्रिंटफ, ये आई प्लस प्लस है, लेकिन इसको एक नाम दे दिए, एक इलियास दे दिए कि तुम दोनों स्टेटमेंट इस काउंट के नाम से जाने जाओगे। या ऐसे ये जो स्टेटमेंट था प्रिंटफ एलिजिबल फॉर वोट, ही विल नोन एज लेवल वोट। ठीक है, तो यहाँ अपन ने दो स्टेटमेंट दिया। अब इधर अपन क्या करते हैं, एक कंडीशन देते हैं, इफ आई लेस देन 10, अगर आई 10 से छोटा हो, क्या करे, गो टू काउंट, काउंट के पास चले जाए। तो देखिए अभी क्या होगा, आई की क्या है, 1 है, हर बार कहाँ जाएगा, काउंट के पास जाएगा, उसको प्रिंट करेगा। तो पहली बार आई क्या है, 1 है, 1 क्या है, 10 से छोटा है, काउंट के पास जाएगा, यहाँ आके क्या प्रिंट करेगा, 1। फिर क्या होगा, यहाँ 1 प्लस प्लस, ये क्या करेगा अपने आप को, आई प्लस प्लस क्या करेगा, आई इक्वल टू आई प्लस 1 करेगा ना जी, आई इक्वल टू आई प्लस 1, सॉरी 1, विच इज ऑलरेडी 1 प्लस 1। फिर नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, 2, अगेन जाएगा, आई की वैल्यू अब क्या है, 2 है, अभी भी क्या है, 10 से छोटा है, फिर से कहेगा गो टू काउंट, फिर से काउंट के पास आएगा, फिर अब क्या करेगा, काउंट को प्रिंट करेगा, क्योंकि स्लैश एन है तो न्यू लाइन में करेगा, हम आपको समझाने के लिए इसी लाइन में लिखते जा रहे हैं। स्लैश एन है तो न्यू लाइन होगा, अगर मैं इसको स्लैश टी कर देता हूं तो अब ऐसा आउटपुट होगा, टैब में होगा। ठीक है, हटाओ, ठीक है, फिर से इस पे आएगा, अब क्या होगा, 2 प्लस 1, आई की नई वैल्यू 3 आ जाएगी। ये अपने आप को रिपीट करता रहेगा जब तक वो 10 के बराबर, 10 से छोटा रहेगा, मतलब 9 ना हो जाए। बार बार ये इस काउंट के इसके पास जाएगा, काउंट के पास जाएगा, इस लेवल के पास। ठीक है, समझ में आई बात। अच्छा, सेव नहीं किया हूँ क्या, कंट्रोल S, सॉरी कंट्रोल S, क्योंकि ये न्यू लाइन में आ रहा है ना प्रिंट, अपन ने बाद में टाइप किया था ना, तो ये आउटपुट हमारा टैब में आना चाहिए था। देखो आया ना, ऐसा। ठीक है, क्लियर हुआ। यस सर। हम्म, तो नाउ we have been through these two,
Unconditional controller statement. Now loop control, very powerful. So what is loop? लूप क्या है? लूप क्या है? बताइए, लूप कंट्रोल के बारे में कुछ आप लोग बोलें। लूप कंट्रोल क्या है? आप लोग भी थोड़ा इंटरेक्टिव रहिए। ब्लॉक ऑफ कोड होता है, रिपीटेडली चलता टुडे वी हैव जितेंद्र, अर्शी, चेतन, मैथिली, न्यू इन टीम सौरभ सिंधे, सुदेशना एंड शुभम. So everyone should be interactive. Same things repeatedly again and again. हाँ. So देखो अभी अपन इनफॉर्मल क्लासेस चल रही है, तो कैमरा वैमरा ऑफ है. मेक श्योर फ्रॉम इट आप लोग इंटरनेट का बैंडविड्थ बढ़ा लीजिए, नेट कनेक्शन ले लीजिए, ताकि आप लोग कैमरा ऑन करके पढ़ सकें. दैट टाइम वी विल हैव सेपरेट सिस्टम विच विल ओनली चेक द लॉगिन्स ऑफ योर्स कि आप लोग लॉगिन है या नहीं, कैमरा ऑन है या नहीं. ठीक ना? चलो अभी तो अच्छा लगता है जब कभी बात करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो आप कैमरा ऑन कर लो तो थोड़ा पहचान सा जाए ना कि अपन हाँ हम ही लोग हैं जो मिलते हैं. ऐसा कभी कभी लगता है ऑनलाइन में कि हम कंप्यूटर से बातें कर रहे हैं. तो आप लोग आपका रिप्लाई जो होता है वो मोटिवेट करता है कि हाँ ठीक है आप लोग हैं इधर. आ, सही बोला कि लूप क्या होता है? रिपीटेशन, आइटरेशन ऑफ अ प्रोसेस. लूप इज समथिंग just which is in repetition. Or you can say a process which iterate till condition is known as loop. Just a minute, I have to uh, charge the laptop. Just need to plug power. Just a minute. Hmm. Loop is something which is in repetition, or you can say that a process which iterate till condition is known as loop. A loop
एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो अपने आप को आइटरेट करता है एक गिवन कंडीशन तक, ठीक ना। तो कौन कौन सा लूप होता है? लूप हैविंग 3 टाइप्स: while loop, do while loop, and third for loop. और ईच भी तो है। हाँ, वो अपन जावा में पढ़ेंगे ना, for each, जिसको एडवांस फॉर लूप कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम ये 3 लूप देखेंगे, फोर में उसका नेस्टिंग देखेंगे और फिर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। We will take 1 to 2 days with this। हम लोग 1 से 2 दिन इसमें लगाएंगे ताकि यहीं पे तो सारा मैनिपुलेशन हमारा, ठीक है। फर्स्ट है हमारा while लूप। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ और लिख दूं, एनी लूप हैविंग 3 सेक्शन। 1 क्या है? इनिशियलाइजेशन, सेकेंड कंडीशन, थर्ड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये 3 चीज होते हैं कि कोई भी लूप रहेगा उसके 3 सेक्शन होंगे। कहीं ना कहीं वो इनिशियलाइज हो रहा होगा, फिर कंडीशन चेक हो रहा होगा, फिर उसके उस कंडीशन के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं अपने आप को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहा होगा वो वेरिएबल, ठीक है। ऐसा अपन का होता है लूप, ठीक है। while loop is while loop is a entry control loop because it checks condition first if condition is true, then it goes to body of loop, otherwise exit from loop। क्या करता है while loop में? पहले कंडीशन चेक करता है, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो वो लूप के अंदर जाता है, नहीं तो वहीं से एग्जिट कर जाता है। चूंकि ये एंट्री के टाइम पे ही कंडीशन चेक करता है, तो इसके लिए इसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। while loop is also known as entry control loop because it checks the condition at the entry level of the execution। जैसे एग्जीक्यूशन होता है वो उस लेवल पे while पे आता है,
सबसे पहले कंडीशन चेक करता है, फिर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने देता है। ठीक है, सिंटैक्स क्या होता है? while कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो जाएगा कहाँ? बॉडी ऑफ लूप, और जो भी काम होगा वो होगा। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो यहीं से बाहर आ जाएगा। ठीक है, कि अगर कंडीशन ट्रू होता है, अगर कंडीशन ट्रू होता है तब तो ये आएगा इसके अंदर। अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो कुछ भी नहीं होगा, लूप के अंदर यहाँ नहीं आएगा, ये बाहर आ जाएगा। तो ये होता है डू वाइल, सॉरी वाइल लूप। वाइल कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो इस बॉडी के अंदर आएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो इसके बाहर चला जाएगा। क्योंकि ये पहले कंडीशन चेक करता है, इसको लिए उसको क्या बोलते हैं? एंट्री कंट्रोल लूप, इट्स नोन एज एंट्री कंट्रोल लूप। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट है तो बताएं, वरना मैं इसका प्रोग्राम करूं। लूप वाइल डॉट सी हैज इंक्लूड stdio डॉट एच मिंट में इसलिए क्या गलती कर दिया मैंने? इंट में इसलिए नहीं लिखता हूँ क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा रिटर्न 0 लिखना पड़ता है। ठीक है, इंट x इक्वल्स टू 1 while x लेस देन इक्वल्स टू 10। अभी वाला ही प्रोग्राम है, समझिए, जो प्रोग्राम अभी अपन ने देखा था, ताकि आपको कॉन्सेप्ट तुरंत से समझ में आए। उसी पे मैं बना रहा हूँ प्रोग्राम, जो अभी वाला कॉन्सेप्ट था। स्लैश टी, और किसको प्रेस कर अपन कर लेते हैं, एक्स को प्रिंट कर लेते हैं। एक्स प्लस प्लस ठीक है, इतना ही अभी किए थे। अभी क्या होगा कि हमने एक लिया है वेरिएबल इंटीजर टाइप का एक्स,
और उसको 1 से इनिशियलाइज कर दिया। ये नहीं भी करते तो, ऐसा भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है, x=1 ऐसा है, ठीक है, एक लाइन और कम जाएगा, ठीक है। अपन ने लिखा while x <10, जब x 10 से छोटा या उसके बराबर रहे, क्या करो, उसको प्रिंट करो x को। तो पहले बार में क्या होगा, देखो यहां आया, while ने क्या किया, कंडीशन चेक किया, x की वैल्यू क्या है 1, अभी x की वैल्यू क्या है, आप लोग बोलते नहीं है ना, तो हमें ही बोलना पड़ रहा है ज्यादा। अभी आया ये, x की वैल्यू क्या है 1 1 है, ये 1 10 से छोटा है या बड़ा है, छोटा। छोटा है। अभी किधर जाएगा ये, जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये इसके बॉडी में जाएगा, और बॉडी में आके क्या होगा, उस x को प्रिंट करेगा। तो क्या प्रिंट हो जाएगा 1, फिर करेगा x प्लस प्लस, मतलब x+1, तो 1 + 1 2 होगा, फिर अपने आप को रिपीट करेगा। क्यों, क्योंकि 2 अभी भी किससे 10 से छोटा है, 2 क्या है 10 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है। तो अभी ये प्रोसेस अपने आप को रिपीट करेगा। इसी रिपीटेशन को हम बोलते हैं लूप, कि ये तब तक करता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू है, ये अपने आप को बार बार रिपीट करता रहेगा। इसी को बोलते हैं लूप या आइटरेशन। तो ये हर बार अपने आप को काउंटर को एक बढ़ाएगा, नेक्स्ट टाइम 3 होगा, फिर 4 होगा, सो ऑन 5 6 और जाके 10 तक जाएगा। और उसके बाद जैसे ही ये अगला में 10 प्रिंट करेगा, तो ये आगे होके 10 प्लस क्या हो जाता है 1। अगर 11 की वैल्यू x की वैल्यू 11 होगी तभी तो वो 10 से बड़ा होगा। जब 11 की वैल्यू 10 से अधिक होगा तो लूप क्या होगा, टर्मिनेट कर जाएगा। लूप टर्मिनेट कब करेगी, जब इस x की वैल्यू इससे बड़ा होगा। तो जब ये बार बार इंक्रीमेंट कर करके 10 तक प्रिंट कर गया, तो जैसे ही 10 के बाद अगला इंक्रीमेंट 10 + 1 11 होगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो ये बाहर आ जाएगा। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है 11। अगर आप चाहते हो इसकी 11 वाली वैल्यू प्रिंट करे, तो ये स्टेटमेंट एक बार फिर से यहाँ पे लिख लो, तो देखिएगा 11 आएगा। क्योंकि ये बताता है लूप तभी टर्मिनेट करता है जब उस वेरिएबल की वैल्यू उस कंडीशन से बियॉन्ड चली जाती है, उससे आगे चली जाती है, ठीक ना। जीसीसी लूप w.c, ठीक है। देखिए प्रिंट कर गया 10 तक। अगर अभी इसकी वैल्यू पता है क्या हो चुकी है, इंट x की वैल्यू 11 हो चुकी है, लेकिन ये 10 तक अंडर प्रिंट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि अंदर की कहानी इतना ही है कि ये लूप कब तक चले, जब तक 10 से छोटा या उसके बराबर, क्योंकि हमने इक्वल टू लिया है ना, तो उससे छोटे या बराबर तक चलेगा। अगर लगता है अपन को कि ये क्या है 11 हुआ है नहीं, एक बार इसको कहे ना, अपन फिर से प्रिंट कर लेंगे। इसको न्यू लाइन में करता हूँ, ठीक है, रुको, ये नीचे आएगा। देखिएगा अभी अपन फिर से एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को। सॉरी 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 सॉरी, हाँ देखिए 11 आया है, सॉरी इसके आगे लगा देता हूँ, ये न्यू लाइन नहीं, ये आ गया टैब में ही, इसकी इंपैक्ट बाद में आती, इसकी इंपैक्ट पहले आती है। कंट्रोल S, गो टू टर्मिनल, कंपाइल रन, ठीक है। क्या हुआ कि 10 तक तो चला, जैसे 11 आया है ना 11,
तब ये टर्मिनेट किया है। हमने ये जो है ये वैल्यू हमने बाहर प्रिंट किया है बच्चे, ये लूप के अंदर नहीं है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। इसलिए मैं पहले बार ये स्टेटमेंट नहीं लिख रहा था। ये तब तक चलेगा जब तक इस लूप की कंडीशन होगा, तब तक ये लूप की बॉडी, इसको बोलते हैं लूप, बॉडी ऑफ लूप। ये लूप के अंदर की काम हो रही है। ये हमने लूप के बाहर प्रिंट किया है, किस टाइप किया भैया, ये इस कंडीशन तक चला, लेकिन ये 11 हुआ है तब ये कंडीशन डिससेटिस्फाइड किया है। तो उस 11 को प्रिंट करने के लिए हमने ये बाहर लिखा है, क्योंकि देखिए ये यहां तक आगे काम हुआ है, जब इसकी कंडीशन डिससेटिस्फाइड हुई है तब ये कर किया है। ठीक है, क्लियर है? इस प्रोग्राम का टाइटल एप्रोप्रिएट हेडिंग क्या हो सकता है? प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 सॉरी 10 नेचुरल नंबर, ये हो सकता है। यूजिंग while लूप। चलो ठीक है, लूप while डॉट टी रहो, यस नहीं, क्लियर है अब तक की कहानी? डू while लूप, डू while लूप क्या होता है? इन डू while लूप we execute code of block first, then check condition. It is an exit control loop because we check the condition in last. In do while loop once run the code, then check the condition. कि डू वाइल में क्या होता है कि एक बार आपका ब्लॉक ऑफ कोड रन करेगा तब कंडीशन चेक करेगा, जबकि वाइल में क्या था कि पहले ही कंडीशन चेक कर रहा था। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तब तो वो रन करेगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वो रन नहीं करेगा। ये वाइल की दिक्कतें थी। डू वाइल के साथ क्या हुआ कि वो ऐसा नहीं है, पहले कोड को रन करने दिया, फिर कंडीशन चेक किया, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ तो आगे का इटरेशन करने देगा, नहीं तो वो बाहर आ जाएगा। इस तरीके से डू वाइल काम करती है। क्या करता है डू, सॉरी,
और यहाँ कंडीशन चेक करता है। अच्छा, क्लियर है? आपको ये बहुत बार क्वेश्चन आप एकेडमी में भी पढ़े होंगे, तो बहुत टाइम ये क्वेश्चन इनकाउंटर हुआ था, व्हाट इज while and do while? What's are what are the differences between while and do while loops? तो क्या है, while में पहले कंडीशन चेक होता है, अगर कंडीशन ट्रू रहता है तो एग्जीक्यूट होता है, नहीं तो नहीं होता है, लेकिन डू while में होता है। जब हम while लिख रहे थे तो इसको हम देखो टर्मिनेट नहीं करते थे, इसका बॉडी ओपन करते थे, लेकिन जब आप डू while लेंगे तो while को हम टर्मिनेट कर देंगे, क्योंकि ये एग्जिट कंट्रोल पे हो रहा है। वाइल को कहां टर्मिनेट करते हैं? डू वाइल के साथ, लेकिन वाइल लूप के साथ टर्मिनेट नहीं होता है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं, इसको भी मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। क्लियर है बातें या नहीं? चलिए प्रोग्राम से ही समझ लेते हैं। लूप डू वाइल डॉट सी। F2, ये ऐसे क्यों हो गया है? इंक्लूड std डॉट h void main int a I equals to 5, I equals to 1। अपन अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? डू कब तक? डू सॉरी, डू में कंडीशन, डू क्या? printf %d स्लैश n और a इंटू i प्लस प्लस। अब कंडीशन लिखेंगे while i लेस देन इक्वल्स टू 10 और इसको टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया डू वाइल। क्या हो गया? ये टेबल प्रिंट कर देगा। और आपको 5 का नहीं करना है, एनी नंबर का करना है, तो इसको रन टाइम पे इनपुट कर लो। अभी इस प्रोग्राम में क्या होगा? प्रोग्राम, कोई भी सी का प्रोग्राम कहां से एग्जीक्यूट करता है जी? एनी सी, हाँ वेरी गुड।
एनी सी प्रोग्राम स्टार्ट देयर एग्जीक्यूशन फ्रॉम मेन। यहां से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ आया, दो वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, आई और ए, दोनों इंटीजर टाइप का। ठीक है, हमने a इक्वल्स टू 5 दे दिया है, i इक्वल्स टू 1 दे दिया है। कहा डू, करो क्या, परसेंट डी, इंटीजर टाइप के लिए, ये न्यू लाइन के लिए, a इंटू आई, 5 इंटू आई, मतलब 5 इंटू 1 क्या होगा, 5, और इसको प्लस प्लस करो, ये क्या होगा, 1 प्लस 1 2, करा फिर चेक करो, वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 10। तो ये जो 2 है वो 10 से बड़ा या छोटा है, छोटा है। अभी ये एग्जीक्यूट करेगा, ये छोटा है बड़ा है, छोटा है। अभी ये एग्जीक्यूट करेगा, फिर से अपने आप को रिपीट करेगा, अगले टाइम आएगा, ये 5 इंटू 2 होगा, मीन्स क्या होगा, 10 होगा। फिर 5 इंटू 3, ऐसे करके ये 5 का टेबल जैसा प्रिंट कर जाएगा। जैसे ही कंडीशन डिसटिस्फाई होगा, ये इसकी वैल्यू 10 प्लस 1 हो जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू 11 हो जाएगी, तो ये रुक जाएगा। और तब तक 5 इंटू 1 5 इंटू करके सारे मैनिपुलेशन करके ये प्रोग्राम दे देगा। तो चूंकि यहाँ कंडीशन जैसे ही लूप में आएगा, तो ये एक बार प्रिंट करने दे रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है, और आखिरी में ये चेक करता है। तो इसीलिए बोलते हैं डू वाइल को एग्जिट कंट्रोल लूप, कि पहले काम करने देता है, फिर आखिरी में कंडीशन चेक करता है। क्लियर है, क्लियर है। यस सर। Yes, sir. गुड, इससे अपन रन करते हैं जीसीसी लूप डू वाइल डॉट सी। देखो टेबल प्रिंट कर गया 5 का। अगर अपन को लगता है क्या कि किसी भी नंबर का होना चाहिए, तो यहाँ इस कोड को हटा दो, लिख दो printf इंटर और नंबर, तो टेबल, टेबल के लिए एक नंबर इंटर करें, और क्या कर लो, स्कैनफ परसेंट डी एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, अभी क्या है कि आप ये किसी भी नंबर के लिए टेबल हो जाएगा। ठीक है, अरे क्या हो गया, अच्छा यहाँ नहीं भर। ठीक है, हम्म, अ- इससे क्या होगा कि किसी भी नंबर का अपन का टेबल जनरेट कर देगा। हम्म, हम्म, ठीक है, अब अपन 9 ले लेते हैं, तो ये 9 का टेबल जनरेट करके दे दिया है, दे दिया ना। अभी 19 का टेबल जनरेट करके दे दिया, जो जरा सा फॉर्मेटिंग पीछे आ रहा था, इसमें एक आगे आ रहा था ना, बाकी पीछे तो मैं आगे वाई। ठीक है, क्लियर है कहानी या नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। यस सर। Yes, sir. हम्म, और बताएं, कोई डाउट।
आज यही रखें, फॉर लूप कल शुरू करें। अच्छा, हाँ, कल का क्या करना है आप लोगों को, पहले आपसे पूछना था, सर ने बोला उनसे पूछ लो। कल आप लोग फेस्टिवल मोड में रहोगे या पढ़ाई के मोड में रहोगे, बताएं। देन वी हैव फोर लूप, थर्ड वन। इन फोर लूप we are put initialization increment decrement in single line of code. That's why it is a popular loop. And known as advanced loop. क्या है ये, एडवांस लूप है, ठीक है। इसमें होता क्या है, का इन फोर लूप बी आर पुट इनिशियलाइजेशन बी पुट सॉरी यानी बी पुट initialization condition and increment decrement in a single line of code. That's why it is a popular loop and known as advanced loop. क्या होता है कि अपन लिखते हैं for initial semicolon condition semicolon इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, तो ये होता है अपन का फोर लूप, जहां एक ही स्टेटमेंट में अपन क्या करते हैं कि तीनों ही चीजें लिख देते हैं। इंट ए और इंट आई इक्वल्स टू 1, आई plus हाँ आई लेस देन 10 और आई प्लस प्लस। ठीक है, इस तरीके से। तो इसको हम सॉरी, और ये गलती है, ये टर्मिनेट नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है, ओपन होता है। ये टर्मिनेशन क्यों, रुको रुको रुको, ये ओपन होता है बॉडी, और फिर जाता है बॉडी ऑफ लूप,
और जो भी काम होता है वो करता है। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो ऐसे लूप को हम क्या बोलते हैं? फोर लूप। दस हो गया फोर लूप का प्रोग्राम। ठीक है। ये भी सर एंट्री कंट्रोल लूप है। हाँ जी। ये एंट्री कंट्रोल लूप है। हाँ, इसको ऐसा एंट्री और एग्जिट कंट्रोल लूप नहीं बोलते हैं, इसको एडवांस लूप बोलते हैं। इसलिए मैंने लिख दिया था इसको एडवांस लूप बोलते हैं। एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप का कॉन्सेप्ट हम व्हाइल और डू व्हाइल में लिखते हैं। यहाँ सिंगल ही लाइन में, इसी लाइन में इनिशियलाइजेशन भी हो रहा है, कंडीशन भी हो रहा है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो अंदर जाता है, नहीं तो नहीं जाता है। और चूंकि कंडीशन पहले ही चेक हो रहा है, तो ये भी एक कैटेगरी से एंट्री कंट्रोल लूप के अंदर है। ठीक है। तो आज अपन ने लूप के बारे में देखा। कल अपन लूप का नेस्टिंग देखेंगे, इस पे बेस पे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। सो टुमारो आप लोग आइएगा, सेशन में जुड़िएगा। ठीक है। कौन चला गया? कोई चला गया? चलो, ठीक है। सी यू टुमारो। हाँ, ओके, बाय। Okay, bye, sir.